Students, welcome to Social Studies class. In our today's class, we are going to start with a new chapter. Chapter 4 of Civics, Role of the State Government. As I had told you in my previous lecture that in standard 7th you are going to learn about the state government. आप जो प्रीवियस लेसन्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हो, जिसमें आपने विधानसभा, विधान परिषद यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ द स्टेट, आपने उसके बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कौन कौन होते हैं, व्हाट आर द पावर्स, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, chief minister, council of ministers, etc. Right, in this chapter we are going to learn about the role of the state government. So in standard 7th you are going to learn about all about state government. First we will talk about the introduction. Okay, first I will give you the introduction. India, including all its states, India has 28 states, right? So India, including all its states, is governed by central government. There is a central government which governs the whole country. Okay, in the country there are many units. Country is subdivided into states. Each state has its own government, but overall governing is done by central government, the union government, in matters of national importance. So in national matters all the states are governed by union government. However, every state has its own special needs. Okay, every state has its own necessities. सबकी डिमांड है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हमारा जोग्राफिकल रीजन, क्लाइमेटिक कंडीशन, कल्चर सब कुछ डिफरेंट है, राइट? सो हर एक स्टेट का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, और इस अलग अलग नीड को फुलफिल करने के लिए, इस टू मीट दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट इज देयर टू लुक आफ्टर द स्टेट. बट इन द मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस all the states are governed by union government. सो यूनियन गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक स्टेट का स्पेशल नीड, पर्टिकुलर नीड फुलफिल करे, राइट? इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट है. फॉर द इजी फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज having state governments. Okay, different states are having different governments to take care of all needs. So we have government at the state level also. The state government's job is to make and give effect to laws on the subject that deal with special needs of the state. तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो स्टेट लेवल की जो स्पेशल नीड्स होती है, जो पर्टिकुलर नीड्स होती है, उनको फुलफिल करें, स्टेट के लिए लॉ बनाए. ठीक है, इट्स ड्यूटी इज़ टू मेक लॉ फॉर द स्टेट अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर region of the state, and give effect to law on subject that deal with special need of the state.
such a system of government in which individual states have control over their own affairs. So, a system in which states have the control over their own affairs but are controlled by a central government in matters of national importance is called a federal system. So this is the definition of federal system. ठीक है, ऐसी सिस्टम जहाँ पर हर एक स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट के स्पेशल अफेयर्स, उनके स्पेशल मैटर्स को कंसिडर करती है, उन्हें फुलफिल करती है, उनके लिए लॉ भी बनाती है और सारा वर्क अच्छे से चलता है. और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो ओवरऑल गवर्निंग करती है, जो ओवरऑल सब कंट्रोल करती है और नेशनल इम्पोर्टेंस जैसे मैटर को, नेशनल लेवल के मैटर को वो कंट्रोल करती है. ठीक है, सो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे फेडरल सिस्टम. Functioning of the state government. A state government makes law and provides service according to the special needs of the state concerned. So state government क्या करती है, वो जो लॉ, जो रूल्स बनाती है और जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है. ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट. The service provided by a state government usually reach to people through local self government. आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था ग्राम पंचायत के बारे में, ब्लॉक समिति के बारे में, जिला परिषद के बारे में, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, म्यूनिसिपलिटी के बारे में. ठीक है, तो ये सारे लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ है जो रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, यानी कि विलेज में, सिटी में, टाउन में, सब जगह पर जो है फंक्शनिंग करवाते हैं, जो ध्यान रखते हैं. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू ये स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है. यानी स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है उसमें मीडिएटर होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी. स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एनकरेज community participation and the participation of NGO to make the schemes more effective. ठीक है, स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, स्कीम है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो NGO की भी मदद लेते हैं. NGO क्या होता है? NGO होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉन प्रॉफिटेबल होती है और जो गवर्नमेंटल नहीं होती है, पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की मदद करना चाहती है, जो वेलफेयर करना चाहती है सोसाइटी की, सोसाइटी में सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहती है. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी गवर्नमेंट जो होता है वो पार्टिसिपेट करने का मौका देती है. The subject on which a state government makes law are mentioned either in the state list or in the concurrent list. Now, कौन कौन से टॉपिक पे, कौन कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कैसे प्रकार के लॉ बनाएगी, वो भी एक लिस्ट में मेंशन किया है, जो कौन सी है, स्टेट लिस्ट है, या तो उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट भी कह सकते हैं. Among these subjects are land reform, irrigation, water, education and public health. तो कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है वो लैंड रिफॉर्म्स, यानी लैंड के लॉ में चेंजेस. ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है.
let us learn a little more about how the state government looks after the public health. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पब्लिक हेल्थ. ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, सो अ गुड गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पब्लिक. ठीक है, तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. दिस विल गिव अस सम आइडिया अबाउट हाउ द गवर्नमेंट डील्स विद द वेरियस सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो हम पब्लिक हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और उससे हमें ये आइडिया मिलेगी कि गवर्नमेंट कैसे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके की जो नीड है स्टेट की, स्टेट के पब्लिक की, वो कैसे फुलफिल करती है. पब्लिक हेल्थ. The state government is responsible for planning, carrying out and monitoring schemes to improve public health. It is the duty of state government to plan, to execute and to monitor, to examine the schemes to improve the public health. गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अलग अलग स्कीम, अलग अलग योजना के ज़रिए पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखती है. तो उन्हें प्लानिंग करनी है, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाना है और उसके ऊपर नज़र रखनी है. इट गेट्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है. ठीक है, फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करती है. ओके, इट गिव्स फंड एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट. टेक्निकल सपोर्ट यानी कि अच्छे एक्सपर्टाइज लोग भी उनको उनके पास भेजती है. एक्सपर्टाइज लोगों को भी वो कुछ समय के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजते हैं. सो उन्हें टेक्निकल, फाइनेंशियल, इक्विपमेंटल सारी हेल्प मिलती है. यूजुअली local self-government bodies and NGOs are actively involved in the efforts to improve public health. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि लोकल लेवल की, सिटी लेवल की या विलेज लेवल की गवर्नमेंट. पंचायत जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत या तो म्यूनसिपलिटी. म्यूनसिपालिटी और ग्राम पंचायत भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं. और NGOs जो ऐसी संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है. ठीक है, सो दे प्ले अ एक्टिव रोल एंड दे वर्क फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ. The state government runs hospitals and health centers in urban and rural areas. सो स्टेट गवर्नमेंट है वो हेल्थ सेंटर्स बनवाती है, हेल्थ सेंटर्स डेवलप करवाते हैं अर्बन और रूरल एरियाज़ में, टू प्रोवाइड द मेडिकल ट्रीटमेंट टू पब्लिक एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट. ठीक है, तो हमारी जो रूटीन में प्रॉब्लम्स होती है या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर हम ये मेडिकल सेंटर में विज़िट करेंगे, अगर हम हेल्थ सेंटर में जाएंगे, तो हमारी प्रॉब्लम वहाँ पर जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम फीस चार्ज करते हैं, या तो काफ़ी बार फ्री में भी वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होती है, सिविल हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल्स, जो एकदम कम रेट में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. दिस आर रन मोस्टली आउट ऑफ टैक्स. अभी इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ओके, सब मनी कैसे उनके पास आती है. ठीक है, तो उनका जो इनकम सोर्स है वो हमारे टैक्सेस है. ठीक है, दे मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम आवर टैक्सेस, ओके, फ्रॉम द टैक्स पेड बाय द पब्लिक.
The state government arranges for sanitation and waste management. So sanitation means the facility of water and the facility for removal of the garbage and wastage. So हमारी गवर्नमेंट है वो सैनिटेशन फैसिलिटी, यानी कि हम टॉयलेट यूज़ करते हैं तो टॉयलेट फैसिलिटी, ड्रेनेज फैसिलिटी और वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखती है. ठीक है. इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ कैंप्स. हेल्थ कैंप्स क्या होता है? हेल्थ कैंप्स का मतलब है अवेयरनेस और वैक्सीनेशन प्रोग्राम. ठीक है. तो हमें पता है कि जो ऐसी बीमारी होती है, ठीक है, जैसे पोलियो है या तो फिर जैसे टाइफाइड है, तो उसकी जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन आपको पता है वैक्सीन यानी क्या होता है? वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंट द डिजीज़ ना हो उसके लिए हम वैक्सीन लगवाते हैं. तो वैक्सीनेशन के लिए भी हेल्थ कैंप्स अरेंज करवाते हैं. कौन अरेंज करवाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट. और टेस्ट भी, हमारी मेडिकल टेस्ट भी वहाँ पर बहुत ही कम रेट में, बहुत ही लो रेट में या तो फ्री में कंडक्ट हो पाती है. और अवेयरनेस फैलाते, अवेयरनेस यानी जागरूकता. ठीक है. अवेयरनेस मैसेज सबको प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट खुद को करना है. ठीक है. ऐसे सारे मैसेजेस, ऐसे सारी इंफॉर्मेशन हमें ऐसे हेल्थ कैंप्स में मिलती है. ओके. एडवर्टाइज में भी हमें मिलता है. जो लोकल चैनल्स होती है या जो पब्लिक चैनल्स होती है उसमें भी हमें काफ़ी डिजीज़ के अवेयरनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं. सो स्टेट गवर्नमेंट है वो रीजनल लोकल लैंग्वेज में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. जैसे वी आर लिविंग इन गुजरात, so in Gujarati language also, in the Gujarati channels we can watch some advertisement regarding the health awareness. Okay, regarding the awareness of various diseases. So health care information is provided by the government through local channels or local media. It employs health workers to work the people and tell the people how diseases can be prevented and treated. काफ़ी हेल्थ वर्कर्स है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे हमें बीमारी से बचना है और बीमारी को भगाना है. ठीक है. बीमारी अगर होती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स सच इंफॉर्मेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट. टीवी चैनल्स पे भी एडवर्टाइजमेंट हम देख सकते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट सेट्स अप एंड रन्स वेरियस इंस्टीट्यूशंस टू ट्रेन फार्मासिस्ट, नर्सेस एंड अदर टाइप्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स. तो ट्रेनिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप करते हैं, जिसकी मदद से जो फार्मासिस्ट होते हैं या नर्स होती है, हेल्पर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में या हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो सब ट्रेनिंग लें और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करें. The health services provided by the state government reach us through a chain of health center. So state government की ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो वो उसमें भी काफ़ी लेवल्स है. ठीक है. तो काफ़ी लेवल्स की वजह से हमें हेल्थ फैसिलिटी मिलती है. तो हेल्थ सर्विस है वो हमें एक थ्रू फ्यू लेवल्स हमें मिलती है. एट विलेज लेवल, तो विलेज लेवल में यानी लोकल रूरल एरियाज़ में छोटा सा एक हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पर
छोटी बीमारी होती है जो, ठीक है, लो लेवल की बीमारी जो इजी होती है ट्रीट करना, तो वैसी बीमारी वहाँ पर ट्रीट होती है। पर अगर विलेज में से किसी को बड़ी डिजीज़ है, ठीक है, मेजर इश्यू है, तो वो डिस्ट्रिक्ट सिटी हॉस्पिटल में भी जा सकता है, ठीक है। द विलेज हेल्थ सेंटर इज अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर supervises the health centers of several villages, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, वो एक ऐसा बॉडी है जो, वो एक ऐसा ऑफिस है जो बाकी के विलेज के हेल्थ केयर सेंटर को ऑब्जर्व करता है और सुपरवाइज करता है। तो PHC पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर have qualified doctors. They refer seriously ill patients to bigger health centers. तो अगर वो जो PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है, उनसे अगर उन्हें लगे कि ये तो प्रॉब्लम बड़ी है, ये बहुत सीरियस इलनेस है, तो वो हमें बड़े हेल्थ सेंटर में यानी कि सिटी या डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में हमें जाने की एडवाइस देते हैं। वी नो दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज फॉर द पब्लिक हेल्थ। ओके, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ एम्बुलेंस ऑल्सो। अभी गांव में हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, अभी तो है पर पहले नहीं होते थे। तो गांव में बहुत अच्छी फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल्स नहीं होते, इसीलिए उन्हें अगर गांव में से किसी को अगर सीरियस इलनेस है तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट में जाने की एडवाइस मिलती है। तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ सकते हैं जहाँ पर स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती है। स्पेशल फैसिलिटीज़ यानी कि सारी मशीनरी अवेलेबल होती है, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं अवेलेबल जो ट्रीटमेंट करते हैं। सो स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ फॉर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट आर अवेलेबल in the district or city hospital. Cities usually have large government hospital where all kind of illness, minor and major, ठीक है। So city have large government hospital. गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी ऐसा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट मैनेज करता है और जो जिनका रेट बहुत लो होता है, ठीक है, वहाँ पर ट्रीटमेंट का रेट बहुत कम होता है। तो ऐसे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वहाँ पर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी की ट्रीटमेंट होती है। बट वहाँ पर मेडिसिन की शॉर्टेज होती है, ठीक है, इतने सारे लोग वहाँ पर आते हैं और मेडिसिन की शॉर्टेज होती है। बेड की, जो बेड होते हैं हॉस्पिटल में, उसकी भी शॉर्टेज होती है। और वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट यानी साधन, ठीक है, मेडिकल साधन और मशीनरी जो होती है वो भी एडवांस नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर कम होती है कंपेयर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल बेड, क्वालिफाइड डॉक्टर एंड ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स, वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं ना, अटेंडेंट और नर्स वगैरह, वो बहुत क्वालिफाइड या बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं। पेशेंट्स ऑफन कंप्लेन ऑफ अनसिम्पैथेटिक डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। पेशेंट्स होते हैं जो बीमार व्यक्ति होते हैं, ठीक है, मरीज होते हैं, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सिविल सिटी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, किसी के यहाँ पर उन्हें कोई सिंपैथी नहीं है, ठीक है, दे डोंट हैव सिंपैथी एंड दे आर नॉट बिहेविंग वेरी काइंडली। सो ये सारी प्रॉब्लम्स
जो है वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में होती है, ठीक है। समटाइम्स डिफरेंस भी होता है, ओके, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है अगेंस्ट द वुमन एंड द दलित्स। बिसाइड्स पब्लिक, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी है और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एंड दे आर on our expenses, on the expenses of the tax received, ठीक है। और प्राइवेट जो हेल्थ सेंटर्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर चार्जेस हाई होते हैं और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में चार्जेस बहुत लो या तो फ्री होता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। बिसाइड्स पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर ऑल्सो अवेलेबल। मैनी डॉक्टर्स रन देयर ओन क्लिनिक, ठीक है। तो काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं जो अपने क्लिनिक्स खोलते हैं और क्लिनिक्स में वो ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हैं। There are also many privately run hospitals and nursing homes, ठीक है। काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और नर्सिंग होम्स भी है जहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, उन्हें अच्छे से उनकी केयर की जाती है और हॉस्पिटल्स में अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है। द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर वेरी गुड बट आर फाउंड मोस्टली इन सिटी। अभी प्राइवेट सर्विसेज है वो भी आपको विलेज में बहुत कम देखने को मिलेगी, सिटीज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि विलेज में जो एजुकेशन है ना वो कम होता है, ठीक है। अब तक कम होता था, इसीलिए विलेजेस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह इतना नहीं होता है जितना सिटी में और शहर में होता है, ठीक है। सो दे आर मोस्टली इन सिटीज़, बिसाइड दे आर रन टू अर्न प्रॉफिट। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट सेक्टर का जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट, उन्हें हमारे से प्रॉफिट चाहिए होता है, ओके। सो they want to earn profit from us, so their charges are very high and that is very costly. To increase profit, the doctors at the private health centers, अभी डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स है वो ज़्यादा टेस्ट करवाने के लिए लिख कर देते हैं। दे प्रिस्क्राइब मोर टेस्ट एंड मेडिसिन देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो एक तो वहाँ पर फीस भी ज़्यादा होती है और डॉक्टर्स अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा टेस्ट और मेडिसिन हमें लिख कर देते हैं। दे ऑल्सो प्रिफर टू यूज़ एक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। और मेथड कौन सी चूज़ करते हैं, एक्सपेंसिव, ठीक है, जिसमें खर्चा हो ना वैसे ही ट्रीटमेंट वो आपको करने के लिए कहते हैं। जबकि कोई सस्ती या अच्छी दूसरी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हो ना, फिर भी वो आपको कौन सी ट्रीटमेंट करने के लिए कहेंगे, एक्सपेंसिव। तो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर आपको कॉस्टली पड़ेगा और पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर आपको चीप पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ सेंटर है या पब्लिक सर्विस हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, पर प्राइवेट में आपको बहुत अच्छे से पर्सनल अटेंशन और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से मिलेंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पब्लिक हॉस्पिटल्स में, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विस में और प्राइवेट हेल्थ सर्विस में।
इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ सेंटर। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे क्लिनिक और हेल्थ सेंटर है। सम ऑफ आवर हॉस्पिटल्स हैव फैसिलिटीज़ दैट आर अमॉन्ग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पर काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल्स है, वो बेस्ट हॉस्पिटल्स है। ठीक है, बाहर से, इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। तो ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं अपनी इंडिया में, अपनी कंट्री में, जहाँ पर एकदम बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मैनी पीपल विजिट इंडिया एज मेडिकल टूरिस्ट। तो अपना इलाज करवाने के लिए भी काफ़ी लोग इंडिया आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। काफ़ी मेडिसिन हमारे यहाँ पर ही प्रोड्यूस होती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ठीक है, इन सब के बाद भी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई हियर फ्रॉम प्रिवेंटेबल कॉजेस। फिर भी यहाँ पर मृत्यु होती है लोगों की, और ऐसे रीज़न से होती है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटेबल कॉजेस, फ्रॉम प्रिवेंटेबल कॉजेस। ऑफन पीपल कैन नॉट गेट टाइमली मेडिकल हेल्प। यहाँ पर है वो हेल्प तुरंत पहुँच नहीं पाती है। ठीक है, इसी वजह से भी काफ़ी तकलीफ होती है पब्लिक को, एंड दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ हेल्थ सेंटर। तो जो रिमोट एरिया है या पब्लिक एरियाज, जो रिमोट एरिया है या तो विलेज एरिया है, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती है, जिसके वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या तो फिर छोटे सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर भी बहुत फैसिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने। मैनी कैन नॉट बेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, और ट्रीटमेंट का जो खर्चा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी लोगों के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी इतने पैसे नहीं होते हैं। The steps taken to stop the spread of diseases, infectious disease, are not enough. सिर्फ आप डिजीज़ को रोकने के लिए स्टेप्स मत लो, आप ऐसे भी स्टेप्स लो जिनकी वजह से डिजीज़ ना फैले, डिजीज़ किसी को हो नहीं। तो वैसे स्टेप्स भी आप लो, तो हम लोगों के लिए साफ पानी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, मैनी इंडियंस स्टिल डू नॉट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड इनफ फूड टू ईट। तो ये प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पीने का साफ स्वच्छ पानी या बरोबर खाना नहीं मिलना। इसकी वजह से क्या होगा कि डिजीज़ होगी। ठीक है, इफ़ द वाटर इज़ नॉट गुड, pure, it is not drinkable, then what will happen? If bad polluted water, if we are drinking, then we will fall ill. And also the food is adulterated. ठीक है, फूड में भी काफ़ी मिलावट होती है आजकल। ठीक है, तो अगर अच्छी क्वालिटी का वाटर या फूड नहीं होगा, इनफ नहीं होगा, तो क्या होगा कि लॉन्ग रन में हम लोग को प्रॉब्लम होने वाली है। So there is still a lot that government can do in the field of public health. Now let's read the example. The government of Kerala has succeeded in improving the public health remarkably by providing health services through पंचायत। अभी हम दो ऐसे प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी इम्प्रूव करवाई है। तो एक है केरला। ठीक है, इंडिया में ही है केरला। ठीक है, साउथ पार्ट में है, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज़ सक्सीडेड इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ रिमार्केबली by providing health services through पंचायत।
तो केरला ने हेल्थ केयर फैसिलिटी को कैसे अच्छा किया है, बेहतर कैसे बनाया है कि उन्होंने हेल्थ फैसिलिटी जो है पंचायत के थ्रू लोगों तक पहुंचाई है। द पंचायत बीइंग मोर अवेयर ऑफ स्पेसिफिक नीड ऑफ विलेजेस। हमें पता है विलेज लेवल में विलेजर्स अपनी प्रॉब्लम्स पंचायत मेंबर्स को सुनाते हैं। तो पंचायत जो है वो पूरे विलेज से अवेयर होती है, विलेज की प्रॉब्लम से अवेयर होती है और विलेज में एक्चुअली क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको पता होता है। ठीक है, तो पंचायत है वो गवर्नमेंट, पंचायत की मदद से वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसीलिए अच्छे से प्लान आउट होता है और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से होता है। ठीक है, सो नीड्स आर एबल, being aware of the specific needs of the village, have been able to plan and carry out the schemes. Water, sanitation, medicine, health, information, etc. facilities are provided by local self-government, by the government. The government could also try to spend more of its fund on public health. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, दूसरे एक्सपेंसेस पे दूसरे जगह पर पैसे यूज़ करने से पब्लिक हेल्थ पर पैसे यूज़ करने चाहिए। सो गवर्नमेंट has to contribute more towards the public health. Government has to spend more amount of money, has to monitor public health. An example of this, अभी इस बात का एग्जाम्पल दिया है कोस्टा रिका का। ठीक है, वो कोस्टा रिका क्या है, कोस्टा रिका है एक कंट्री, अमेरिकन कंट्री, जो कहाँ पर लोकेटेड है, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, कोस्टा रिका इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल अमेरिकन। ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका हमने पढ़ा था, उसके बीच में ही कोस्टा रिका कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, सो कोस्टा रिका में सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कोस्टा रिका, this country's government abolished the army in 1948. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कोस्टा रिका के सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी के ऊपर एक्सपेंस नहीं किया और हेल्थ के ऊपर एक्सपेंस किया। तो कोस्टा रिका ने आर्मी है उसको एबॉलिश कर दिया, यानी कि कैंसल आउट कर दिया कि आर्मी में कोई भी खर्चे हम नहीं करेंगे। अब से हम खर्चा किस में करेंगे, पब्लिक हेल्थ पे करेंगे, पहले हम पब्लिक हेल्थ को प्रेफरेंस देंगे। सो देयर आफ्टर द मनी दैट वुड हैव बीन स्पेंट ऑन आर्मी, जो खर्चा आर्मी पे हम करते हैं वही खर्चा उन लोगों ने पब्लिक हेल्थ पर भी किया। ठीक है, द मनी दैट वुड हैव बीन स्पेंट ऑन आर्मी वर नाउ स्पेंट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। This significantly improved the Costa Rican people's welfare. ठीक है, इससे क्या हुआ कि कोस्टा रिका सोसाइटी, कोस्टा रिका कंट्री के जो सिटीजन्स हैं ना, पीपल है, उनकी लाइफ अच्छी हुई, their health was improved, right? So these are the two examples. First example is the example of Kerala of India and second example is the example of Costa Rica. ठीक है, country Costa Rica. I hope you enjoyed the video and understood this topic. You have to read the chapter. Okay students, bye, take care.